Death well. Death well. So you have to understand the diagram first. We have a well of radius r, and यहाँ पे we have a vehicle. Okay, some vehicle is there. Okay, and this vehicle is performing circular motion about the wall of this well. ठीक है, and they have asked us, can you find the maximum velocity for this vehicle? Okay, तो first draw the FBD. Weight will act downwards, right? mg है ना, वेट नीचे एक्ट करेगा और द टेंडेंसी इज टू स्लिप डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द वेट. सो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स लाइक दिस, फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द टायर, है ना. ओके, एंड दिस प्रेसिंग द वॉल, द व्हीकल इज प्रेसिंग द वॉल लाइक दिस, तो वॉल विल गिव यू नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस. ठीक है. ओके, नाउ सी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर मोशन द फोर्स विच इज टुवर्ड द सेंटर इज नॉर्मल रिएक्शन, है ना. तो वी कैन से दैट कि नॉर्मल रिएक्शन विल गिव यू सेंट्रीपिटल फोर्स. करेक्ट है, दिस ऑन दिस एक्सिस. ठीक है, और ऑन द वर्टिकल एक्सिस यू कैन से दैट फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग योर वेट. हो गया. अभी देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज mv²/r. ऑल्सो वी नो दैट फ्रिक्शन का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू μn, isn't it? What is friction का value we have got? We got friction is balancing weight, तो mg less than equal to mu. n का value is mv²/r. by you get v square should be more than equal to rg by mu, or v should be more than equal to root of rg by mu. more than equal to का मतलब क्या है? इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, राइट? तो दैट मीन्स ये सबसे कम वैल्यू है, मतलब मिनिमम वैल्यू है ना. वी कैन राइट देयरफॉर minimum velocity of this vehicle should be root of rg by mu. If velocity reduces beyond this, it will fall, नीचे गिर जाएगा वो. समझ में आया क्या? Also you should know this result कि v is proportional to root of r here. इस पे भी questions they can ask. समझ में आया ना? ठीक है, तो सिंपल सा you draw the diagram, you explain the diagram once and then you just write the steps, box the final answer. हो गया, इतना ही करना है. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट वन देखो. Next one is let's take conical pendulum. Conical pendulum. इसमें we have to find the time period of conical pendulum. See, what is the question here? कि let's say we have a pendulum. तो normal simple pendulum will do to and fro motion. ठीक है, conical pendulum it performs सर्कुलर मोशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ऐसे करता है ये, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेट्स से सम l. ओके, मास ऑफ दिस बॉब हियर इज लेट्स से सम स्मॉल m. ओके, एंड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, इसको हम थीटा ले लेते हैं. दीज आर द असम्पशंस. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड, ढूंढना क्या है? यू हैव टू फाइंड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन. एक बार घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है. समझ में आया क्या? ओके, देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर. ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ड्रॉ द एफबीडी. तो ये देखो वेट नीचे ऐसे एक्ट कर रहा है mg. ओके, स्ट्रिंग है तो टेंशन विल एक्ट अपोजिट टू पुल लाइक दिस. करेक्ट, स्ट्रिंग टेंशन एंड वेट. बस, और कोई फोर्स है क्या इसमें? नहीं है ना. अब देखो, तो यहाँ पे mg tension. Okay, now look at this. If I have to, if I say this angle is theta, तो we can say this is alternate angle. ये भी theta हो जाएगा. Okay, तो ये theta हो जाएगा हमारा. Okay, now resolve this tension towards the angle. Cos component, this is t cos theta. Away from the angle, sin component, this is t sin theta. Now you should realize that t cos theta is balancing the weight, isn't it? So I can say on the y-axis, t cos theta is balancing mg. And what is this t sin theta doing? T sin theta is towards the center, isn't it? तो वो provide करेगा तुमको centripetal force. So you can say that here t sin theta provides you centripetal force, which is equal to what? Which is mv²/r भी फॉर्मूला है दूसरा, m ω²r भी लिख सकते हैं. ठीक है, so we can write m ω² small r. What is small r here? See, this is the small r, radius of the circle. तो if I have to draw a triangle, तो ये radius of the circle हो गया, ये theta हो गया और ये l हो गया. Correct? This is the length of the string. नहीं, ठीक है.
नाउ इसको डिवाइड कर लो. ओके, तो व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट cos theta upon sin theta is equal to mm cancel, isn't it? M and m will get cancelled. You have g upon omega square r and substitute the value of r here. Okay, r का value क्या मिलेगा in terms of theta? We can say that sin theta, right? Sin theta is equal to opposite upon adjacent. So we can say r is simply L sin theta. ठीक है, substitute करो यहाँ पर. तो you will get cos theta upon sin theta is equal to g upon omega square L sin theta. sin theta बाय बाय हो जाएगा यहाँ पर. and you'll get omega square का value as g upon L cos theta, which basically means omega is root of g upon L cos theta. Now what is omega? Omega is, it is 2 pi by capital T. इसको T dash लिख लेते हैं because यहाँ पे T टेंशन के लिए यूज़ किया है मैंने. तो what is T dash? is time period. Okay, is equal to रूट ऑफ g अपॉन एल cos थीटा. इसका रेसिप्रोकल ले लो और सॉल्व करो. you'll get t डैश का वैल्यू एस क्या मिलेगा? will be 2 पाई रूट ऑफ एल cos थीटा अपॉन g. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसमें cos का टर्म आ रहा है. इन सिंपल पेंडुलम ये ओनली गेट l, है ना. तो दिस इज द फॉर्मूला. एनी क्वेश्चंस हियर? तो दोनों ही, इफ यू सी बोथ द डेरिवेशन, द फंडा इज सिंपल. यू ड्रॉ द फोर्सेस, बैलेंस द फोर्सेस, यू सी विच फोर्स इज गिविंग यू सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर v पूछा है तो वेलोसिटी निकाल लो. अगर टाइम पीरियड या ओमेगा पूछा है तो हम फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर ले लेते हैं. समझ में आया फ़र्क? ठीक है, इजी है ये. ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, आगे आ जाओ. मिनिमम वेलोसिटी, यू कैन से मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. So basically what is happening here, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार है जो रोड पे से टर्न ले रहा है, मतलब क्योंकि वी आर दिस अ रोड विच इज हॉरिजॉन्टल नेचर, दिस इज नो बैंकिंग हियर, रोड पे टर्न ले रहा है. एंड लेट्स से रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रोड इज सम स्मॉल आर रोड पे से टर्न ले रहा है. तो यहाँ पे समझ लो कार है हमारा. ओके, ऐसे टर्न ले रहा है. वेलोसिटी इज लाइक दिस, ऐसे वेलोसिटी है उसकी. ओके, लेट्स से वेलोसिटी सम v. ओके, तो इफ यू लुक एट दिस कार या व्हीकल, ओके, इसका वेट m ले लेते हैं हम. तो व्हीकल ऑफ मास m इज टेकिंग टर्न ऑन अ कर्व्ड रोड. ओके, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r, वेलोसिटी इज v राइट नाउ. वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका वेट तो नीचे एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन बाय द रोड विल बी अपवर्ड्स. ओके, अब इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन करना है तो एक फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर, राइट, विच वी कॉल एज सेंट्रीपिटल फोर्स, isn't it? तो यहाँ पे वो फोर्स कौन देने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों वर्टिकल है ना. इफ दिस इज अ कार, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अ वेट, राइट. समझा क्या? और तुम टर्न ले रहे हो तो इस तरह फोर्स चाहिए हमको. तो वो फोर्स कौन देने वाला है यहाँ पे? द ओनली फोर्स अवेलेबल इज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. तो वो रोल लेगा, मतलब तो फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर. ओके, एंड इट विल प्रोवाइड यू सेंट्रीपिटल फोर्स. समझ में आया क्या? ओके, अब हो गया. तो वी कैन जस्ट से कि एन इज बैलेंसिंग mg हियर and friction provides you centripetal force and we need velocity, तो I'll take इसको m v square by r, है ना. Also we know that friction is always less than equal to mu into n, that's the limiting value of friction. friction की value substitute करो, it's m v square by r less than equal to mu mg and you have your velocity. v square should be less than equal to mu rg, which means v should be less than equal to root of mu rg, है ना. लेस देन इक्वल टू मतलब, ठीक है, इससे कम होना चाहिए, ये वैल्यू से कम होना चाहिए, मतलब ठीक है. तो इसका मतलब क्या, ये मैक्स वैल्यू है. तो वी कैन से दिस इज द मैक्स वैल्यू. ठीक है, हो गया. समझ में आया क्या? फंडा अभी भी वही है, फोर्स बनाया, ठीक है, रिजॉल्व कर दिया एंड रिकॉर्डेड. इसमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन जो है, ठीक है, दैट इज टेकिंग रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड. प्रीवियस सब में इफ यू नोटिस, तो टेंशन वाज गिविंग यू, टेंशन का कंपोनेंट, वन कंपोनेंट वाज गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स. इसके पहले वाले सब में नॉर्मल रिएक्शन वाज गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स. तो वॉट एवर फोर्स यू विल हैव टुवर्ड द सेंटर, दैट विल प्रोवाइड यू सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. सिंपल. ओके, विल सी. ठीक है,
we can see on the horizontal road we can call it safe speed, है ना, because if I go beyond this speed what will happen, I'll skid outwards, because see if you go beyond this speed का मतलब क्या है कि इस स्पीड से ज़्यादा जा रहे हो तो क्या फ्रिक्शन will not be able to help you. जब तुम टर्न ले रहे हो, ठीक है, तो फ्रिक्शन इससे ज़्यादा स्पीड को लेने देगा नहीं, और तुमने ले लिया अगर इससे ज़्यादा स्पीड तो तुम आउटवर्ड स्किड हो जाओगे, तो फ्रिक्शन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे नहीं पाएगा उतना. समझ में आ रहा है क्या? ओके, तुम कर्व पे नहीं रह पाओगे, ठीक है, you'll go straight or you'll go outwards. Is making sense? So skidding will happen if you go beyond this value. So we can also say this is safe speed, लिख सकते हैं actually, safe speed on horizontal road लिख देते हैं. मैक्सिमम स्पीड बोलो या सेफ स्पीड बोलो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ आई बैंक दिस रोड. बैंक का मतलब क्या होता है, देखो कि इसमें कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन द रोड इज नॉट हॉरिजॉन्टल इनफ, मतलब इसको क्या करते हैं हम, इसको ऐसे जो आउटर एज है रोड का उसको रेस कर देते हैं, तो रोड विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ देखिए, देखो रेस कर दिया एंड देन इनर एज इज एज इट इज, तो आउटर एज ऑफ द रोड रेस्ड, ठीक है, ओवर द इनर एज बाय सर्टेन एंगल थीटा, और ये थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है. ओके, इसको बोल रहे हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स. अब इसमें वो वेलोसिटी वगैरह पूछ लेते हैं हमको. ओके, so let's say radius of curvature of road is same, it is r only. Okay, angle of banking is theta, है ना, angle of banking theta लिया है, radius of curvature r लिया है, this is your vehicle यहाँ पे. Okay, vehicle की velocity is like this. Okay, it's along the road, ठीक है, mass m assume कर लो. Okay, and if I have to draw the FBD, इसका free body diagram बनाएंगे अगर, देखो क्या हो रहा है. Okay, weight is acting downwards like this, mg, normal reaction is like this. Okay, and let's say it's moving with a very high speed. Okay, तो tendency to slip outwards ऐसा imagine कर लेते हैं, case 1 ले लेते हैं हम लोग इसमें कि tendency to slip outwards, it's moving with very high speed. So in that case, if the tendency to slip outwards, friction will act along the surface and inwards, ऐसे friction act करेगा, है ना. ओके, और यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, सी बैंकिंग करना मतलब क्या है कि रोड को हमने ऐसे, इट वॉज फ्लैट इनिशियली, ओके, अब खाली में ये वाला एड्ज को ऐसे ऊपर उठा लिया है, तो नाउ द रोड इज लाइक दिस. ओके, तो सी फॉर द व्हीकल वो एक एंगल थीटा पे आ जाएगा, बट रोड के इफ यू लुक एट द रोड का सेंस, ओके, तो रोड के सेंस में अभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है, और सर्कल विल बी सेम. सर्कल पे कोई सर्कुलर मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली जो व्हीकल है वो व्हीकल इज नॉट मूविंग लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, बट सर्कुलर मोशन के सेंस में देखो अगर, ठीक है, तो एवरीथिंग इज सेम. समझ में आ रहेगा? ऐसा नहीं हो रहा है कि यू नॉट से कि सर्कुलर मोशन का जो रेडियस वो ऐसा नहीं होगा, मतलब सर्कुलर मोशन ऐसे नहीं हो गया, ठीक है, सर्कल अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है. आई यू एबल टू अंडरस्टैंड पॉइंट? सर्कुलर मोशन इज स्टिल हॉरिजॉन्टल, व्हीकल टेढ़ा हुआ है, सर्कल अभी भी हॉरिजॉन्टल ही बन रहा है जैसे बनना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ आई हैव टू मार्क सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इट शुड बी अलोंग दिस लाइन ओनली, वो ये लाइन पे ही है. समझ में आ रहा है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है या सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो होंगे वो इसी लाइन पे है, समझा. सर्कल का सेंस हैज नॉट चेंज, ओनली द व्हीकल हैज बिकम टेढ़ा बिकॉज रोड इज बैंक्ड. दिस मेकिंग सेंस? समझा ना? ठीक है, ये समझ में आएगा तो अभी हो गया. ओके, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, तो दिस इज माई सेंट्रीपिटल डायरेक्शन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस तरफ होगा ऐसे समझो. ओके, तो व्हाट विल डू इज विल रिजॉल्व फोर्सेस अलॉन्ग दिस रेफरेंस लाइन. ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो फोर्सेस भी हम ऐसे ही रिजॉल्व करेंगे. ओके, तो देखो अभी एक दो डायग्राम और बना लेते हैं. ओके, ये एम जी है यहाँ पर, ये वाला फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन है. ओके, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज योर centripetal acceleration. Okay, if this angle is theta here, so we can say this angle is theta. तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, ये एंगल थीटा है, तो दिस प्लस दिस इज 90 एंड दिस प्लस दिस इज 90, राइट. तो कॉमन एंगल कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन से इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा. समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ऐसे.
समझ में आया क्या? ओके, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। समझ आ रहा है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि mg इज ऑन द एक्सिस ओनली, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर ऑफ द एक्सिस, तो इसका कॉम्पोनेंट लेते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द एंगल cos component this will be n cos theta, okay, towards away from the angle sin component this will be n sin theta। फ्रिक्शन के लिए क्या होगा, टुवर्ड्स जाएंगे तो दिस विल बी द कॉम्पोनेंट, तो दिस विल बी f cos theta एंड अवे फ्रॉम द एंगल दिस विल बी f sin theta, ठीक है। तो व्हाट आई कैन सी इज दिस कि रिजॉल्व करने के बाद यू कैन से दैट कि यहाँ पे mg है और यहाँ पे वी हैव फ्रिक्शन का साइन कंपोनेंट, ओके। वाई एक्सिस में वी हैव ऑन द पॉजिटिव साइड वी हैव n cos थीटा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर वी हैव फ्रिक्शन का cos कंपोनेंट एंड n का साइन कंपोनेंट, ओके। एंड दीज टू फोर्सेस आर टुवर्ड द सेंटर along the centripetal acceleration। ये दो फोर्सेस है यहाँ, दे विल बैलेंस बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऑन द वाई एक्सिस आई कैन राइट, वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं कि n cos थीटा इज बैलेंसिंग mg प्लस f sin थीटा। टेक f sin थीटा हियर, वी कैन से n cos थीटा माइनस f sin थीटा is mg। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, okay। And on the x axis we can say that both of these forces they will give you centripetal acceleration या centripetal force दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे n sin थीटा प्लस f cos थीटा is giving you centripetal force that is mv square by r। that's equation number 2। समझ आया क्या? इक्वेशन फोर्स समझ में आया अगर तो रिजॉल्विंग समझ में आ जाएगा, रिजॉल्विंग समझ में आएगा तो फोर्स इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन हियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ इट इज जस्ट सॉल्विंग, अब इसे सॉल्व करना है बस, देख लो एक बार। शुड आई गो अहेड? अब क्या करें, देखो विल जस्ट डिवाइड 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलेगा। तो विल गेट, अब सॉल्विंग है सिर्फ, तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा दिस इज 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिला था हमको mv स्क्वायर बाई r, ओके, अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा, है ना, और नीचे था mg, है ना, दिस वाज इक्वल टू mg, राइट। तो mm कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो हियर विल सब्स्टिट्यूट फ्रिक्शन का वैल्यू एज, सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो चीज़ करेंगे यहाँ पे, विल सब्स्टिट्यूट subc friction as mu n, this is one thing which I want to do here। second what I want to do is I will divide numerator and denominator by cos theta just to get you the format of textbook, okay। देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को सब्स्टिट्यूट करें म्यू n, ओके, cos थीटा, ठीक है। नीचे है हमारा n cos थीटा, फ्रिक्शन को सब्स्टिट्यूट करो म्यू n साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है। एंड देन आई सेड कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, तो डिवाइड बाई cos थीटा हो जाएगा हर जगह, जस्ट डिवाइड बाई cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। तो n विल बी कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस दिस बिकम्स tan थीटा, ओके, प्लस कॉस कॉस बाय बाय, ठीक है, तो गेट म्यू अपॉन, ठीक है, कॉस कॉस कैंसल्ड 1 हो जाएगा, माइनस म्यू साइन बाई कॉस इज tan थीटा अगेन, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और वी कैन से दैट v is, take this here and take a root, you will get root of tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta into rg, हो गया। ये फॉर्मूला है, ठीक है, समझ आया क्या? दिस इज द वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। आई टेल यू व्हाई इट्स कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। यानी क्वेश्चन है वर्किंग भी सेम ही है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ दो चीज़ याद रखो
कि इसको हमने डिवाइड किया एंड देन फ्रिक्शन को μ1 सब्स्टिट्यूट किया एंड कॉस से डिवाइड करके सो दैट वी वांट द आंसर इन टैन. टैन में आंसर चाहिए इसलिए कॉस से डिवाइड किया बस. ठीक है, फाइन. अब देखो यहाँ पे व्हाट इफ द व्हीकल इज स्लो. अगर व्हीकल स्लो है, इफ द व्हीकल इज नॉट वेरी फास्ट, ओके, नाउ दिस वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो का डेफिनेशन विल टॉक अबाउट इट. ओके, बताते हैं. बट अगर स्लो व्हीकल है तो क्या होगा कि व्हीकल विल स्किड अलॉन्ग द स्लोप. स्लोप के नीचे आने की कोशिश करेगा, राइट, स्लो है तो, है ना. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द ओनली चेंज इज कि ये वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन अभी भी ऐसे ही है, mg भी अभी भी ऐसे ही डाउनवर्ड्स. फ्रिक्शन जो था वो अभी अपोज करेगा, राइट. तो इफ इट इज स्लिपिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो फ्रिक्शन विल अपोज इट एंड फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड्स. समझ आया क्या? अब इसके वजह से क्या होगा कि इफ यू रिजॉल्व इट, फोर्स डायग्राम देखो ऐसा कुछ हो जाएगा. मतलब दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस. ओके, सो नाउ डायग्राम विल बिकम समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. देखो यहाँ पे ये mg है, ठीक है, ये n है, ये फ्रिक्शन हो जाएगा, करेक्ट. एंड एंगल्स, इफ आई नोट, तो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा. तो ये थीटा हो जाएगा यहाँ पर एंड ये थीटा हो जाएगा. ठीक है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक दिस. इफ यू सॉल्व दिस, ओके, जैसे पहले सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है. सो सॉल्व करेंगे तो पता रिजल्ट कैसा आएगा कि द सेम रिजल्ट विल गेट, ओके, बट प्लस और माइनस रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो विल गेट यहाँ पे ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा. तो यू विल गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, यू विल गेट tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा. ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन द प्रीवियस वैल्यू दैट वी हैव गॉट. पहले वाले से कम है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये है मैक्स वेलोसिटी. ठीक है, और ये वाला है मिनिमम वेलोसिटी ऑन द बैंक्ड रोड. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, यू डोंट हैव टू डिराइव बोथ टुगेदर. एक डिराइव करके सेकंड वाले के लिए तुम लिख सकते हो. समझ में आएगा? दोनों पूरा सॉल्व नहीं करना है ऐसे डायग्राम बना के. एक को लिखा तो दूसरा वाला बोल सकते हो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होगा एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट. इज मेकिंग सेंस? दो बार डायरेक्शन नहीं करना है मतलब. ओके, यू जस्ट डिराइव वंस इफ दे आस्क यू एंड देन सेकंड टाइम यू कैन जस्ट से दैट कि इफ यू चेंज द कंडीशन तो दिस इज द रिजल्ट यू विल गेट. इज मेकिंग सेंस? ओके, ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम हो गया. दिस वन मोर थिंग कॉल्ड एज ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑन दिस बैंक्ड रोड. ऑप्टिमम वेलोसिटी मतलब क्या है? सी फॉर ऑप्टिमम वेलोसिटी वी टेक म्यू 0. ओके, उसका फंडा ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट ऑप्टिमम वेलोसिटी वी से दैट कि यू अंडरस्टैंड, सी इफ आई लुक एट द डायग्राम, यहाँ पे mg है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, राइट. तो इफ आई डोंट यूज फ्रिक्शन का अगर यूज ही नहीं करे, ओके, तो भी नॉर्मल रिएक्शन का इफ यू सी, देखो यहाँ पे नॉर्मल के दो कंपोनेंट है. एक ये कंपोनेंट इस तरफ है, कॉस कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस तरफ है, करेक्ट. ओके, तो इवन नॉर्मल कैन प्रोवाइड यू सेंट्रीपिटल फोर्स. समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के भरोसे भी सर्कुलर मोशन कर सकते हैं हम लोग. इज मेकिंग सेंस? विदाउट यूजिंग एनी फ्रिक्शन. ओके, तो इफ यू डोंट यूज फ्रिक्शन, ओके, टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स एंड यू जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट की, क्योंकि प्लेन हमारा मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन है, तो उसकी वजह से नॉर्मल अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा और उससे ही हमको एक कंपाउंड मिल जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा हमको. तो सिर्फ नॉर्मल के भरोसे अगर सर्कुलर मोशन करें यहाँ पर, ओके, तो देन इधर यू कैन डिराइव इट अगेन और वी कैन जस्ट टेक कंडीशन कि हमने फ्रिक्शन को नहीं लिया है तो फ्रिक्शन का म्यू 0 कर दो एंड कोई भी एक फॉर्मूला ले लो. यहाँ पे यू कैन टेक दिस फॉर्मूला और द प्रीवियस वन. सी इफ आई टेक म्यू एज 0, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस 0, ओके, अपॉन 1 माइनस 0, राइट. तो यू गेट यहाँ पे tan थीटा अपॉन 1. तो आंसर दैट यूल गेट इज tan थीटा, है ना. ठीक है, ऊपर tan थीटा बचेगा, नीचे 1 बचेगा, राइट. tan थीटा rg, तो यू कैन राइट इसको rg tan थीटा. ये है फॉर्मूला. इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम स्पीड. ऑप्टिमम स्पीड मीन्स कि ये स्पीड पे चलोगे तो देयर इज नो स्किडिंग, ना अपवर्ड्स ना डाउनवर्ड्स, इजंट इट. एंड सी मैक्स स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होगा? इफ योर स्पीड इज मोर देन ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है, तो मैक्सिमम यू कैन गो इज टिल वी मैक्स. ओके, एंड इफ योर स्पीड इज लेस देन ऑप्टिमम स्पीड, तो मिनिमम यू कैन गो इज टिल वी मिन. तो ये जो है वेलोसिटी,
ये रेंज में होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? और इफ़ यू ड्राइव एट दिस स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड पे, तो फ्रिक्शन का भी काम नहीं लगेगा, उतने में ही तुम आराम से टर्न ले लोगे। इज मेकिंग सेंस? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्किडिंग इफ यू ड्राइव एट दिस स्पीड, ना अपवर्ड्स ना डाउनवर्ड्स। इफ यू डोंट स्किड दैट मीन्स फ्रिक्शन इज नॉट बीइंग यूज्ड। एनी क्वेश्चंस? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। VCM, ठीक है। नेक्स्ट VCM, एक्चुअली बिफोर वी स्टार्ट VCM ना, एक दो चीज़ समझ लेते हैं, मतलब, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके, कपल ऑफ पॉइंट्स दैट यू शुड नो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि इसमें क्या क्या हम लोग एज्यूम करके देख लो। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक स्ट्रिंग है, जैसे मास हियर, दिस इज स्ट्रिंग, इसका रेडियस लेंथ r लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन का लेते हैं, दिस इज इन वर्टिकल प्लेन, ओके, दिस इज मास m, ओके, और इसको समझ लो हमने कुछ स्पीड v दिया है, एंड वी डिफाइन पॉइंट्स यहाँ पे, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ये मिड पॉइंट जैसा हो गया, और दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट इस तरफ है, ये मिड पॉइंट इस तरफ है, तो ABCD का पाथ हो गया तुम्हारा, ओके। तो इफ़ आई हैव टू ड्रॉ FBD, तो वो देख लो पहले, A, B और C आर द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। C, अगर A पे FBD बनाना है तो स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस, ऐसे रहेगा, राइट? यहाँ पे इट इज़ अटैच्ड, स्ट्रिंग इज लाइक दिस, तो यहाँ पे वेट ऐसे नीचे आएगा और टेंशन अपवर्ड्स, तो टेंशन ऐसे आएगा, राइट? और तुम्हारा वेलोसिटी ऐसा है, तो यहाँ पे टूवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स है? टेंशन, राइट? तो यू कैन राइट टेंशन माइनस दिस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, माइनस mg इज इक्वल टू दिस इज द फोर्स अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन दैट विल प्रोवाइड यू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv²/r ऐसे लिख सकते हैं, है ना? ठीक है। और यही सेम डायग्राम एट A, अगर B पे बनाना है तो एट B, see at B diagram will be like this, कि string will be like this, mass is like this and it is moving upwards with velocity, ऐसे ये वाला डायग्राम यहाँ पे आ जाएगा, राइट? घूम के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन विल बी ऐसे, यहाँ पे टूवर्ड द सेंटर, mg विल बी डाउनवर्ड्स, करेक्ट? ओके, दिस इज योर V, तो हियर वी हैव ओनली वन फोर्स विच इज टूवर्ड द सेंटर, राइट, विच इज टेंशन, तो विल राइट टेंशन इज इक्वल टू टूवर्ड द सेंटर इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टेंशन ओनली प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? और एक और बात समझो कि एज यू गो अप, ओके, योर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, योर काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस, तो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है? ओके, एंड पॉइंट सी का भी कर लेते हैं। सी पे कैसा आएगा? सी पे स्ट्रिंग विल बी ऐसे अपसाइड डाउन, ऐसे रहेगा, वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, एंड सो टेंशन विल बी डाउनवर्ड्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग, वेट भी डाउनवर्ड्स होगा बिकॉज gravity, okay, so here you can write T plus mg, both are toward the center, it provides you centripetal force, ठीक है? तो these are the force equations. अब for complete vertical circular motion you should know that कि for complete VCM tension at C should be always greater than equal to 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, कहीं भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एंड स्लैक का मतलब क्या है? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग इज ऑलरेडी राइट, मतलब मैक्सिमम टेंशन यही मिलने वाला है, ठीक है? टॉप मोस्ट पॉइंट इज द मोस्ट रिस्की पॉइंट, तो अगर वहां पे स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुआ तो कहीं भी स्लैक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसलिए फॉर कंप्लीट VCM वी से TC, दिस टेंशन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इफ यू पुट द कंडीशन यू विल गेट V का वैल्यू एज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ RG। इफ आई टेक लिमिटिंग कंडीशन तो V एट C शुड बी रूट ऑफ RG। This thing you should know before we start the next derivation. तो पता होना चाहिए कि C पॉइंट पे अगर पूरा सर्कुलर मोशन करना है, ठीक है, तो C पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए? रूट ऑफ RG। समझ में आया क्या? ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो इज आस्क यू डिराइव द कंडीशन फॉर कंप्लीट VCM, दिस इज व्हाट यू राइट द फोर्स इक्वेशन एट C, ठीक है? देन यू से दैट कि फॉर कंप्लीट VCM स्ट्रिंग हैज टू बी ऑलवेज टाइट, देयर हैज टू बी नो स्लैक एनीवेयर, एंड C हैपेंस टू बी द मोस्ट रिस्की पॉइंट वेयर टेंशन इज मिनिमम, तो वहाँ पे तुम कंडीशन डाल के सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया क्या? ओके, इतना भी पूछ सकते हैं, या दिस कैन बी अ 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसका, ठीक? ओके, अब इसके बेसिस पे दे आस्क यू कि कैन यू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट A एंड वेलोसिटी एट पॉइंट B, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कैन यू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट A एंड B, ये दो पॉइंट पे कैसे निकालेंगे?
वी कैन यूज एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो करते हैं, देखो। तो आई नो दैट यहाँ पे वेलोसिटी कितना है अपना, रूट ऑफ आर जी। ओके, आई नीड वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट सी। ओके, तो रेफरेंस ले लेते हैं। अगर दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, तो यहाँ पे हाइट जीरो ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये हाइट जीरो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ए बी सी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इफ आई टू राइट, तो आई से आई एम एट जीरो हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो रहेगा। एट बी इफ आई टू राइट पोटेंशियल एनर्जी, तो बी पे हाइट कितनी है, दिस इज आर, राइट। तो यू हैव आर हाइट, तो विल राइट यहाँ पे एम जी आर। ओके, इफ आई टू राइट पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सी पे लिखें तो हाइट इज 2r, तो यू कैन से इट इज mg 2r, दैट इज 2 mgr। एनी क्वेश्चंस हियर? ये रेफरेंस पॉइंट है, पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, यहाँ पे हाइट r है, यहाँ पे 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी पता है। अब यूज़ कर लो इसको। तो वी नो दैट इफ़ यू वांट वेलोसिटी एट b, तो यू कंजर्व एनर्जी बिटवीन दीज टू पॉइंट। ओके, एंड यू से कि काइनेटिक एनर्जी एट b प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b should be equal to kinetic energy at C plus potential energy at C. तो kinetic energy at B is half m VB square plus potential energy is mgr, हमने लिखा है यहाँ पर, is equal to kinetic energy at C is half m VC square, VC is root rg, तो स्क्वायर किया तो rg हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2 mgr, राइट। अभी लिखा है हमने 2 mgr, हाइट 2h 2r है उसका। सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे m m m m कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 2 एवरीवेयर, यू विल गेट vb स्क्वायर प्लस 2gr, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या तो 5gr है, राइट, विच इज एक्चुअली vb इज इक्वल टू √3gr, है ना। एंड यू कैन डू द सेम थिंग फॉर a ना, ये सॉरी ए के लिए भी कर सकते हैं, राइट। क्या आ जाएगा, मतलब आई एम जस्ट स्टार्टिंग द रिलेशन फटाक से। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ओके, दिस इज हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू हाफ एम रूट जी आर का स्क्वायर इज रूट आर जी हो जाएगा, प्लस 2 mgr। सॉल्व दिस, यू शुड गेट वी ए का वैल्यू एस कितना मिलेगा, √5gr। तो ये रटना चाहिए हमको रिजल्ट, वी शुड नो द रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट यहाँ पे इट इज़ मिनिमम वेलोसिटी हियर इज √5gr, मिनिमम वेलोसिटी हियर इज √3gr एंड देयर इज vc इज √rg, ठीक है। ओके, तो दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि फाइंड वेलोसिटी द हाईएस्ट पॉइंट और एट मिड पॉइंट और एट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पूछा है तो यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे ख़त्म कर दो। अगर इफ दे आस्क यू अदर पॉइंट्स का, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, यू सी इफ इट इज 2 mark क्वेश्चन तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, इफ इट्स 3 mark क्वेश्चन देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। ओके, मार्क्स के हिसाब से लिख दो, समझ में आएगा। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ पे। मोस्टली ये डेरिवेशन की तरह कम पूछते हैं, ये भी MCQ की तरह ज़्यादा पूछते हैं, बट डेरिवेशन ही पूछा हुआ है, ऐसा नहीं पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पर दे आस्क यू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टेंशन, डिफरेंस बिटवीन टेंशन हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच में, ठीक है। मतलब बेसिकली इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दे वांट डेल्टा टी विच इज बेसिकली टी ए माइनस टी सी, इसका वैल्यू चाहिए उनको, ये वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे इसका डिफरेंस, वो टेंशन का डिफरेंस चाहिए। तो अभी इक्वेशन हमने लिखा ही था ना, यहाँ पे टेंशन यूज टू एक्ट लाइक दिस, राइट, एंड mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी इज लाइक दिस। यहाँ पे टेंशन भी डाउनवर्ड्स है एंड mg भी डाउनवर्ड्स है एंड वेलोसिटी इज लाइक दिस, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्थ इक्वेशन हियर, हियर इज द सॉल्यूशन। फोर्थ इक्वेशन यहाँ मिलेगा टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, है ना। ये वेलोसिटी को वी ए बोल रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी अलग है, ठीक है। दिस इज वी ए एंड यहाँ पे दिस इज वी सी। एट दिस पॉइंट विल राइट टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाई आर। नाउ इट्स easy, टी ए माइनस टी सी जो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 you will get टी ए माइनस टी सी माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, राइट। तो इट इज़ -2 mg
इज इक्वल टू, टेक m by r कॉमन, ओके, यू हैव va स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर. व्हाट इज va का वैल्यू? √5 rg, राइट, एंड vc इज √rg. स्क्वायर करने के बाद दिस इज 5 rg, दिस इज rg, राइट, है ना. 5 rg माइनस rg विल बी हाउ मच? ठीक है, तो यू हैव 4 rg. ठीक है, तो ये आर आर बाय बाय हो जाएगा. यू हैव 4 mg, तो यू हैव TA माइनस TC माइनस 2 mg इज इक्वल टू 4 mg, विच बेसिकली इम्प्लाइज TA माइनस TC इज 6 mg. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको पता होना चाहिए. ठीक है, देख लो एक बार. फोर्स इक्वेशन अगर आता है और पता है वेलोसिटीज कहाँ पे क्या है, तो यू कैन ऑलवेज डू दिस. ओके, एंड टेंशन इज हाई, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, दैट यू शुड नो. तो इट्स TA माइनस TC डेल्टा T. और क्या बचा इसमें? ठीक है, आई थिंक वी आर डन. देयर इज वन मोर लास्ट, वेलोसिटी ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज. कॉन्वेक्स कौन क्या? इसमें एक्चुअली सभी कर लेते हैं. रुको, एनी क्वेश्चन हियर गाइस? देखो, कॉन्वेक्स, सी मतलब कॉन्वेक्स भी मतलब शेप इज लाइक दिस. ओके, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कुछ r है, और इस पर एक व्हीकल है जो कुछ स्पीड v से जा रहा है, मास m गोइंग विद द स्पीड v. ओके, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, मतलब व्हाट इज द थिंग दैट दे आस्किंग यू फाइंड द वेलोसिटी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg. ओके, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर n लाइक दिस, and if you look at the center, this is center point, right? So towards the center mg is acting and you are performing circular motion because you are on a curved road, right? Curved road पे हो तो circular motion चल रहा है, तो centripetal force या centripetal acceleration नीचे की तरफ है. तो what I'll do is I'll take mg as positive, towards the center positive, and n as negative, है ना, is equal to mv square by r. That's the centripetal force. सही है ना? तो इसमें एक चीज समझो, मतलब व्हाट यू टू अंडरस्टैंड इज कि इफ आई कैलकुलेट n का वैल्यू तो इट विल बी mg माइनस mv स्क्वायर बाय r. करेक्ट है ना? इसको हमने यहाँ लिया, इसको यहाँ ले लिया. तो अगर वेलोसिटी इनफ है तो फिर v का वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एट व्हाट स्पीड द व्हीकल इज गोइंग. ओके, अगर वेलोसिटी इनफ है तो इट कैन काउंटर बैलेंस, इट कैन बैलेंस mg, राइट, है ना. अगर वेलोसिटी इनफ है तो mg को बैलेंस कर लेगा. मतलब अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो सकता है अगर v की वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर दिया तो. ठीक है, और 2 और 2 मतलब क्या है? 0. समझ में आ रहा क्या? तो n कैन बिकम 0 इफ n विल बी 0 इफ वी कैन से दैट कि mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और वी कैन से v इज रूट ऑफ rg, है ना. समझ में आया क्या? अगर v rg है तो n 0 हो जाएगा. मतलब और अगर मैंने वेलोसिटी और बढ़ा दिया, इफ आई गो बियॉन्ड दिस वेलोसिटी व्हाट विल हैपन? एंड नेगेटिव मतलब वो सरफेस को छोड़ देगा, मतलब समझ में आएगा. इट इज स्लिप. ओके, तो स्लिप होने का चांसेस है इफ यू गो बियॉन्ड दिस वेलोसिटी. समझ में आ रहा है क्या? तो दिस बिकम्स योर मैक्स वेलोसिटी ऑन द कॉन्वेक्स रोड. समझ में आया क्या? तो ये भी पूछ रहे थे तुमको, ये पूछा तो कर सकते हो, है ना. तो ये स्टार्ट विद रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन डेरिवेशंस, तो इसमें पहले वो 3 कर लेते हैं. वील स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो आ जाओ, लेट्स से स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी या ऑब्जेक्ट वी कैन से. तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक रैंडम शेप ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस. एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है. Let's say angular velocity of this object is some omega. ठीक है, this is your AOR, axis of rotation. ठीक है. Now couple of things that you should know before we start this derivation. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये एक रॉड है मेरे पास, ओके, और इसमें मैं 2 पॉइंट ले लूँ, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और ये रॉड को मैं घुमा रहा हूँ अबाउट दिस एक्सिस. समझ लो इस एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे हैं इसको, रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन वी रोटेट दिस रॉड, तो नोटिस दैट कि दिस पॉइंट A will come here after some rotation,
पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा ना, पॉइंट ए और बी की पोजीशन चेंज आएंगे रॉड को घुमाएंगे तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि ए और बी बोथ हैव कवर्ड सेम एंगल थीटा, इजंट इट, बट देयर डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट। सी जो एस का वैल्यू है ये अलग है इसके लिए, ये S1 है और ये S2 है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डिफरेंट, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द पॉइंट। ये ए जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बी जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बट एंगल दोनों ने सेमली कवर किया है। समझ में आ रहा है क्या? तो रोटेशनल मोशन में यू शुड रिमेंबर कि इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग तो एंगुलर पैरामीटर्स थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दीज पैरामीटर आर सेम फॉर एवरी पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स है जो घूम रहे हैं उनका थीटा, ओमेगा, अल्फा सेम रहेगा, ठीक है। हाउएवर देयर लीनियर पैरामीटर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। इज मेकिंग सेंस? रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है कि जो भी पॉइंट तुम बॉडी पे लोगे वो सब पॉइंट का एंगुलर पैरामीटर सेम रहेगा, सब लोग सेम एंगल घूमेंगे, सेम ओमेगा लेंगे, सेम अल्फा लेंगे, बट सबका डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी डिफरेंट। समझ में आया? तो मतलब पॉइंट ए का डिस्टेंस ट्रैवल इज डिफरेंट, पॉइंट बी का डिस्टेंस ट्रैवल इज डिफरेंट, समझा? सेम उसका वेलोसिटी भी अलग रहेगा और एक्सेलरेशन भी अलग रहेगा। मेक सेंस? एंड यू शुड नो दिस फॉर्मूला आल्सो, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो व्हाट इज आर हियर? डिस्टेंस फ्रॉम योर ए ओ आर। तो एक्सिस से जितना दूर जाएगा उतना एस, वी और ए का वैल्यू बढ़ जाएगा, समझा? इफ पॉइंट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस, उसका डिस्प्लेसमेंट as r increases your s, v and a will also increase for that particular point. ये पॉइंट चाहिए हमको बिकॉज दिस विल बी यूज इन अदर डेरिवेशंस ऑल्सो। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था कि दे आर आस्क्ड कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है, तो कैन यू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी? ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसके जो पॉइंट्स है, इफ आई टेक अ पॉइंट यहाँ पे, लेट्स कॉल इसको m1, फिर टेक पॉइंट यहाँ पे m2, ऐसे, या इमेजिन दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, m1, m2, m3, m4, mn। तो ऑल, जब ये ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग तो ऑल दिस पॉइंट्स आर परफॉर्मिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन, है ना? समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है बट जो पॉइंट्स है ऑब्जेक्ट पे वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो m1 है, लेट्स से उसका डिस्टेंस कुछ r1 है यहाँ से, और ये जो m2 है उसका डिस्टेंस कुछ r2 है। तो सिंस द डिस्टेंस इज डिफरेंट तो देयर वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, राइट? तो वी कैन से दैट m1 पार्टिकल हैज, लेट्स से, वेलोसिटी v1 एंड वी कैन राइट दैट v1 as r1 ओमेगा। समझा क्या? क्योंकि डिस्टेंस r1 है, ओमेगा सेम ही रहेगा, देखो। और m2 पार्टिकल के लिए सेम, उसका वेलोसिटी v2 होगा, इट विल बी r2 ओमेगा, एंगुलर पैरामीटर्स विल बी सेम और जो लीनियर पैरामीटर है वो अलग अलग होगा बिकॉज डिस्टेंस अलग है, ठीक है। सिमिलरली द nth पार्टिकल विल हैव वेलोसिटी vn व्हिच विल बी rn ओमेगा। तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। तो व्हेन आई राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, तो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? पूरे ऑब्जेक्ट का चाहिए तो हर एक पार्टिकल का, एवरी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी विल ऐड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दो, काम खत्म। ओके, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? इट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर, दिस विल बी हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस विल बी हाफ mn vn स्क्वायर, है ना? अब सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज v का वैल्यू? r ओमेगा, कर दो सब्स्टिट्यूट। तो इससे k will be equal to half m1, v1 is r omega, v1 square, तो r1 square omega square plus this will be half m2 r2 square omega square and so on, this will be half mn rn square omega square, just v equal to r omega लगाया बस। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, half is common, okay, and omega square is also common, okay, ब्रैकेट में I'll have m1 r1 square plus m2 r2 square and so on, right? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? करेक्ट को समेशन ऑफ mr स्क्वायर लिख सकते हैं into ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज समेशन ऑफ mr स्क्वायर कॉल्ड? इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो इफ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन, सिर्फ और सिर्फ घूम रहा है, ओके, तो बोल सकते हैं कि उसका
के जो होगा इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेर आई इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर. ओके, वेर आर इज डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एनी क्वेश्चंस हियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, कि कैसा मास कितना फार है, कितना नज़दीक है एक्सिस से. बिकॉज इफ आर इंक्रीजेस ऑब्वियसली योर आई का वैल्यू विल चेंज. इज मेकिंग सेंस? समझ में आ गया? अब एग्जैक्टली सेम लाइन्स में यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाला और उसको ऐड करते गए, राइट? सेम लाइन्स पे वी हैव अदर टू डेरिवेशंस आल्सो. इफ यू ओपन द टेक्स्ट बुक यू विल सी कि सेम कुछ उन्होंने किया. काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्वेश्चन पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. अभी सेम ही, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा खाली फॉर्मूला अलग है बस. ओके, यू शुड नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम का सिंबल इज एल. ओके, एंड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज एम इंटू आर क्रॉस पी. ये डेफिनेशन है. समझ में आया क्या? ओके, एंड इफ द एंगल बिटवीन देम इज लेट्स से 90 डिग्रीज आर और पी में, तो हम इसको, सॉरी आर क्रॉस वी, माय बैड, आर क्रॉस वी है एक्चुअल फॉर्मूला इज, और यू कैन इसको आर क्रॉस पी ऑल्सो भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, आर क्रॉस पी लिखो या एम इंटू आर क्रॉस पी, एक ही बात है. ओके, एंड इफ एंगल बिटवीन आर एंड वी इज 90, वी कैन से द फॉर्मूला बिकम्स एम वी आर. दिस इज फॉर एनी ऑब्जेक्ट, एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी वी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ए ओ आर एक्सिस से अगर जा रहा है तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, राइट? बट ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का है. हमको पूछा है कि इफ द इंस्टेड ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ आई हैव ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग अबाउट इज एक्सिस, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ओमेगा से घूम रहा है अगर, तो इसका बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आएगा. पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एम वी आर इज फाइन. ओके, इफ द एंगल इज 90, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट ही घूम रहा है अगर, तो उसके लिए क्या करोगे? तो सेम फंडा विल से कि लेट्स इमेजिन दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स m1, m2, m3 एंड mn. ओके, और अगेन सेम कि m1 इज एट अ डिस्टेंस r1, m2 इज एट अ डिस्टेंस r2, है ना? तो इनका वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी विल बी r1 ओमेगा, है ना? इसका v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज r1 ओमेगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? r2 ओमेगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो वही सेम वापस लिख सकते हैं कि m1 is moving with velocity v1 which is r1 omega and so on. Nth particle is moving with velocity vn with velocity r2 omega, correct? Which also implies कि if I have to write L1 angular momentum of the first particle, तो कैसे लिखेंगे? देखो, it will be mvr ना, m, ठीक है, सर्कुलर मोशन में r और v परपेंडिकुलर रहता है, राइट? तो we can use mvr. ओके, तो m1 r1, सॉरी mv1 r1 ना, mvr, m1 v1 r1. okay, and v is r omega, so what do you get? You will get, put r omega here, you will get m1 r1 square omega, correct? ऐसी सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल और nth पार्टिकल का इफ आई फाइंड l का वैल्यू, इट इज सिंपली क्या आएगा? mn rn स्क्वायर ओमेगा. सेम चीज को हमने कॉपी पेस्ट किया है बस. ओके, जस्ट इस फॉर्मूला इज mvr and v is r omega, so you put the values, you get the this thing. तो ये this is L for individual particle. For entire object if I need, so I have to add. So I will say L for rotating object will be equal to L1 plus L2 and so on till nth particle. This is m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega and so on. ठीक है, इसमें क्या होगा कि ओमेगा कॉमन निकल जाएगा एंड ब्रैकेट में यू हैव m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना, विच इज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर विच इज आई. तो हो गया बस, यही फॉर्मूला है. तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा. तो इफ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन, ओके, उसका एंगुलर मोमेंटम वुड बी आई इंटू ओमेगा. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट दैट एक्सिस और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. इज मेकिंग सेंस? सेम डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन, कुछ खास नहीं है. वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाला था, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकाला है. फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर था, यहाँ पे एम वी आर है. इज मेकिंग सेंस? समझा? अभी देखो एग्जैक्टली सेम लाइन पे एक और डेरिवेशन है विच इज टॉर्क ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. सेम कॉपी पेस्ट. देखो इसमें क्या बोला है कि लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस. दिस इज योर ए ओ आर
and is rotating about this axis with angular acceleration alpha radians per second square. तो इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन दिया है और अभी भी वही करेंगे कि बोलेंगे एक पार्टिकल m1 है यहाँ पर, एक पार्टिकल m2 है यहाँ पर, m1 का डिस्टेंस r1 ले लिया, m2 का डिस्टेंस r2 ले लिया. यहाँ पे विल नॉट फाइंड वेलोसिटी, विल फाइंड एक्सेलरेशन. तो विल से कि एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल a1 विल बी r1 अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू r1, इसको अल्फा ही रहने देते हैं, ठीक है. सिमिलरली a2 विल बी r2 अल्फा एंड an विल बी rn अल्फा, ठीक है. This is one thing that I need. Second thing I need is what is the torque का formula? It is R cross F. ये टॉर्क का फॉर्मूला, राइट. ओके, जिसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इफ द एंगल इज 90 बिटवीन आर एंड एफ, राइट. इज ऑल्सो इक्वल टू आर एफ इज एम ए, है ना. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव. इट इज क्या बोलते हैं, टॉर्क इज सिंपली एम आर ए. ओके, चलो विद दिस वी कैन से दैट m1 पार्टिकल के लिए अगर टॉर्क निकाल रहे हैं टाउ1, दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 a1, ठीक है. और a1 का वैल्यू कितना है, r1 अल्फा, तो दिस बिकम्स r स्क्वायर अल्फा, है ना. सिमिलरली m2 का भी सेम करो, टाउ2 हो जाएगा, दिस विल बी m2 r2 स्क्वायर अल्फा एंड nth particle will be tau n, which will be mn rn square alpha. If you want torque of the entire rotating object, so it will be equal to tau 1 plus tau 2. Same कहानी repeat है. Okay, this will be what, m1, बस steps ऐड करते जाओ, बस जितना हो उतना लिखते जाओ. mn rn square alpha and what do you get, यहाँ पे m1 r1 square plus m2 r2 square blah blah blah, which is I alpha, है ना. This is summation of Namaskar, right. So we will get a formula as torque is equal to I alpha. These are vector quantities. If you are performing pure rotational motion, we can write this formula, है ना. समझ आया क्या. तो यही सेम ही था, मतलब वहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिला, देन वी गॉट आई ओमेगा एंड देन आई अल्फा. दिस इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. समझ में आएगा. इसलिए इसको साथ में करा दिया, बिकॉज सबका प्रोसेस सेम है. इसमें सिर्फ तुमको थोड़ा सा थियरी लिखना पड़ता है. इमेजिन अ बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल इज अ डिस्टेंस r1 r2 r3, फिर ये स्टेप्स लिखो, फिर ये लिखो, थोड़ा कहानी लिखो बस, बाकी तो डेरिवेशन सेम ही है. इफ दे आस्क यू, समझ में आया, है ना. इजी था ये. व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट करते थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ये करते हैं, ये पूछते हैं वो लोग, काफ़ी पॉपुलर डेरिवेशन है. तो स्टार्ट विथ पैरेलल से करते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पहले तो थ्योरम क्या है वो सुन लो. ओके, इसमें बोला है कि लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, लेट्स से दिस, ये ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड लेट्स इमेजिन दिस एक्सिस विच पासेस टू सेंटर ऑफ मास. ओके, एंड ये जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू COM. लेट्स कॉल इसको ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग सेंटर ऑफ मास. अगर तुमको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो यू कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस. समझ लो, एक और, इफ आई इमेजिन वन मोर एक्सिस, ओके, एक और एक्सिस इसके पैरेलल ले लिया अगर, तो इसको बोलते हैं लेट्स से I पैरेलल. ओके, एंड लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज सम h. तो इफ ICOM इज नोन, यू कैन फाइंड I पैरेलल यूजिंग दिस थ्योरम विच सेज दैट कि I पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू ICOM इज इक्वल टू ICOM प्लस mh स्क्वायर. m क्या है यहाँ पर, इट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी. ओके, h इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस. ओके, और ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना. एंड इट शुड बी 1-to-1 पैरेलल. ऐसा नहीं चलेगा, मतलब पैरेलल प्लेन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है. एक्सिस एक्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए. इसको स्क्यू बोलते हैं, स्क्यूइंग इज नॉट अलाउड. समझ में आएगा, ठीक है. जस्ट 1-to-1 पैरेलल होना चाहिए.
तो अगर ये वाला पता है तुमको, इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस हो उसका तुम निकाल सकते हो, समझा। इफ आई नो दिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके पैरेलल निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? कंडीशन क्या है कि दैट एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, दैट्स इट। इफ ICM इज नोन, यू कैन फाइंड I पैरेलल। समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। अभी ये प्रूव करते हैं हम लोग, दिस इज टू प्रूव, और प्रूफ देखो कैसे करना है। बट सी बिफोर आई डू द प्रूफ, तुमको एक और चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला जो लिखा था हमने, इट इज समेशन ऑफ mr², राइट, है ना। m क्या है? पॉइंट मास ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड r इज डिस्टेंस ऑफ दैट दिस m फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। बट ये फॉर्मूला तब चलता है व्हेन यू हैव डिस्क्रीट सिस्टम या डिसकंटिन्यूस सिस्टम, या लेमैन्स लैंग्वेज में बोले तो पॉइंट मास का सिस्टम बना दो तो चलेगा। ऐसे सेट ऑफ पॉइंट मासेस है तो चलेगा, समझा। एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास यहाँ पे, एक पॉइंट मास है, ऐसा रहेगा तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। समझ में आ रहा है क्या? बट इफ यू हैव शेप्स लाइक डिस्क दे दिया, ठीक है, या रॉड दे दिया, तो दीज आर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर शेप्स दे दिया तुमको तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बिकॉज इफ आई गिव यू रॉड, तो हाउ मेनी पॉइंट्स विल कंसीडर, राइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पॉइंट मास की जगह पे व्हाट डू यू डू? वी यूज ए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, राइट। व्हाट वी डू इज, समझ लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये AOR है अपना, तो हम क्या करते हैं कि एक्सिस से सम r डिस्टेंस पे वी एज्यूम अ वेरी स्मॉल मास dm, ओके। अब इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं हम, राइट। इट इज di, इट विल बी व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास। समझ में आया क्या? पूरे बॉडी का चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ di, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, या dm r²। समझ में आया क्या? तो दिस फॉर्मूला यू शुड नो। तो फॉर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला में क्या हो रहा है देखो, इसमें भी ये समझना है कि ये r का रोल बहुत बड़ा है इस फॉर्मूला में, ठीक है। दिस r विल टेल यू, तो dm क्या है, मतलब इट्स लाइक इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मैथमेटिकली देखो तो, है ना। जैसे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx में से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dm हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो dm इज जैसे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ये r का वैल्यू बताएगा तुमको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस से निकल है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इफ दिस इज द रॉड, ओके, एंड आई कंसीडर टू एक्सिस, एक एक्सिस ये ऐसे लिए बनाया देखो, ओके, और एक एक्सिस यहाँ बनाया है, और यहाँ पे मैंने एक dm ले लिया। समझो dm की डिस्टेंस इस वाले एक्सिस से, लेट्स कॉल इसको 1, इज सम r1, एंड dm का डिस्टेंस ये वाले एक्सिस से, एक्सिस 2 से सम r2 है। तो इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ r1² dm, इट इंप्लाइज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस 1 से निकाला तो I1 हो जाएगा वो। समझ में आया क्या? ठीक है। और अगर मैंने r2² dm लिखा तो इट मीन्स आई एम फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस। इज मेकिंग सेंस? तो r का वैल्यू कौन से एक्सिस से निकाला है तुमने, ठीक है, वो बताएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है। समझा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस विल बी डिफरेंट, ओके। बट ये फॉर्मूला में तुमको देखना है कि r किधर से निकाला है। जिधर से भी निकाला है तुमने r, दैट विल डिसाइड कि i किसका है, I1 का है, 1 एक्सिस का है कि 2 एक्सिस का है। इज मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये r का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल टेल यू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ का निकाला हुआ है। तो देखो अभी इसको यूज़ करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ dm ने यहाँ पे ले लिया, लेट्स से देयर इज अ स्मॉल मास dm यहाँ पे, ओके। और फिर बोला है कि dm का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कुछ r0 है, ओके, एंड dm का डिस्टेंस ये जो I पैरेलल वाला एक्सिस है यहाँ से, इस सब r, इसको r ले लो, इसको r ले लिया, ठीक है। दिस इज r एंड दिस इज r0, दिस इज गिवन टू यू, okay. This we can say we are assume a small mass dm, okay, at a distance r0 from some center of mass, and or we can say about this axis, okay, and from this axis, okay, and assume that dm का distance from I parallel is some small r. तो जैसे ये assumption लिया तो I can write कि ICOM would be integration of r0² dm and I parallel would be integration of r² dm. Do you agree? ये समझ में आएगा क्या क्यों लिखा मैंने? समझा क्या? dm से समझ में नहीं आता है। r डिस्टेंस कहाँ से लिया है dm का? I पैरेलल से, इसलिए इसको I पैरेलल दिया मैंने, ठीक है। r0 डिस्टेंस कहाँ से है उसका?
ICOM से, इसलिए ICOM लिया. समझ में आया क्या? इज मेकिंग सेंस? ठीक है. तो द मोमेंट यू एज्यूम दिस डिस्टेंस, दिस यू कैन राइट. इज मेकिंग सेंस? नाउ हियर इज द कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है कि यू एक्सटेंड दिस लाइन ऐसे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. ठीक है, यहाँ से ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो यू गेट अ ट्राइंगल लाइक दिस. सी
इजी, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। ठीक है, इसमें देखो क्या दिया है कि लेट्स से देयर इज ऑब्जेक्ट एंड वी डिफाइन 3 एक्सिस यहाँ पे x y एंड z, या इसको y ले लेते हैं, चलो इसको x y और z कर लेते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रीवियस थ्योरम था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू 3D ऑब्जेक्ट्स, समझ में आ रहा है क्या? बट जो परपेंडिकुलर वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल, या बोलना चाहिए प्लेनार या लैमिनार ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या है कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एप्लीकेबल जैसे इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स, मतलब ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं थिकनेस इज वेरी लेस, ठीक है, एंड एरिया इज वेरी लार्ज, समझ में आ रहा है क्या? एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनार ऑब्जेक्ट। सेकंड कि अगर इफ आई नो मोमेंट, इसका थ्योरम क्या है कि लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट को हम एक्स एक्सिस पे घुमा रहे हैं, लेट्स से दिस में एक्स एक्सिस, और एक्स पे घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स बोल लेते हैं, और वाई पे घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई वाई बुला लेते हैं, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस विल बी माय एक्स रोटेशन, दिस विल बी माय वाई रोटेशन, समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझे? दिस इज रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब इसको ऐसे घुमा रहे हैं अगर तो ये एक्स रोटेशन हो गया, ठीक है, और अगर इसको ऐसे यहाँ से घुमा रहे हैं तो ये वाई रोटेशन हो गया, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, तो ऑब्जेक्ट पहले तो क्या बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी प्लेनार और लैमिनार। सेकेंडली इट शुड लाई इन एक्स वाई प्लेन ओनली, बिकॉज इफ आई नो आई एक्स एंड आई वाई, तो ऑब्जेक्ट आई एक्स आई वाई अगर पता है तो वही दो प्लेन उसी प्लेन में होना चाहिए वो, समझा? अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स पता है और वाई पता है तो ऑब्जेक्ट भी एक्स वाई में लाई करना चाहिए, दैट इज द कंडीशन, समझा? तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, आई नो आई एक्स एंड आई वाई का वैल्यू, ये दो चीज पता है। इफ आई नो आई एक्स आई वाई, आई कैन फाइंड आई जेड ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड थ्योरम इज वेरी सिंपल, इट स्टेट्स दैट कि आई एक्स जेड इज सिंपली आई एक्स प्लस आई वाई, और हमको यही प्रूव करना है, ओके, ये प्रूव करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द नोन फैक्ट्स? वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ आई एक्स आई वाई, ऑब्जेक्ट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये हमको पता है, ठीक है, एंड आई एक्स आई वाई values are known, then we can use this theorem, ठीक है। चलो करते कैसे करेंगे, देखो, ओके, टेक अ पॉइंट यहाँ पे ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, दिस इज अ पॉइंट, इस पे पॉइंट को बोलो डीएम, ओके, एंड लेट्स एज्यूम दैट डीएम कोऑर्डिनेट्स आर सम एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में रह रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई ले लिया हमने, ओके, एंड एक्स कॉमा मतलब क्या है, इसका डीएम का डिस्टेंस from the x axis, this distance here, this will be x, and dm का distance from the y axis, this will be y, है ना, ठीक है, ओके, अच्छा। also let's assume that कि dm का distance from the z axis is some z only, z मान लेते हैं इसको, okay। now you tell me if I write integration of z square dm तो क्या होगा वो, इट विल सिंपली आई जेड, है ना, मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है दैट विल टेल यू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस का है, तो डीएम का डिस्टेंस जेड तो जेड एक्सिस से ही है, इसलिए आई जेड का मतलब ये होगा। इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएम तो क्या होगा, ये इट इज नॉट आई वाई, इट इज आई एक्स, देखो देखो ध्यान से, ये एक्स तो ये एक्स और ये वाई तो ये वाई, तो डीएम का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, एक्स है भाई, ठीक है, और x से कितना है y, चमका, समझ में आया क्या, ठीक है। तो इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm इट इज ix, एंड इफ आई राइट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm इट इज iy, ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, मेक सेंस, ठीक है। अब तो ठीक है, मतलब इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल उठा लो यहाँ से, ओके, इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ठीक है, दिस इज 90 डिग्रीज, यू कैन से दैट z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, पाइथागोरस थ्योरम, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय डीएम, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन, एंड नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट, दिस इज एक्चुअली आई जेड, दिस इज एक्चुअली आई वाई, दिस इज आई एक्स, हेंस प्रूव्ड, काम खत्म, समझ में आया क्या, इजी है ना, ठीक है।
तो डेरिवेशन सिंपल है, बस कुछ कुछ फैक्ट्स को ध्यान रखो, ठीक है, कि ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर डीएम का मतलब जल्दी जल्दी में इसको आई एक्स मत लिख देना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब वहाँ पे मार्क्स कट जाएगा तुम्हारा। बाकी तो प्रूफ इज वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो these two derivations are asked very frequently. Okay, there is one more derivation which is very important. It's called conservation of angular momentum. ये भी काफी बार पूछ चुका है, काफी इजी डेरिवेशन। ओके, इसमें प्रूफ क्या करना होता है कि टू प्रूव दैट इफ नेट टॉर्क इज जीरो, किसी भी सिस्टम पे टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, या वी कैन से दैट, और वी कैन से दैट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दिस वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि अगर टॉर्क जीरो है तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो हियर इज द प्रूफ। So we start with the definition of angular momentum, which is L is equal to R cross P. ये definition है उसकी, ठीक है, moment of linear momentum. Okay. Now what you do is you derivate on both sides, ठीक है, तो derivate with respect to time on both sides. क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा dl by dt और यहाँ मिलेगा d by dt of R cross P. Isn't it? है ना? अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, राइट? तो वी कैन से दिस इज UV रूल, राइट? तो वी कैन से U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ U इनटू V, है ना? तो व्हाट इज dl by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ठीक है, इज इक्वल टू R। ओके, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ क्या, एक्चुअली इसको ऐसे ही रहने दो, लीव इट लाइक दिस, डीएल बाई डी रखो इसको। ओके, वन सेकंड, किसको डीएल बाई डी रखते हैं हम लोग। ओके, व्हाट इज डी बाई डी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स ना, इसको फोर्स कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे डी बाई डी इज वेलोसिटी एंड क्रॉस ये जो मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम है ये, तो ये m इंटू वी होगा, है ना? तो यहाँ पे दो वी आ गया ना, तो v क्रॉस v इज व्हाट, इट इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स इज जीरो, राइट? ठीक है, बिकॉज एंगल जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो मुझे मिल रहा है dl by dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। r क्रॉस f हैपेंस टू बी टॉर्क। ओके, तो ये प्रूव कर लिया हमने कि टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इफ दैट इज ट्रू देन हम बोल सकते हैं कि इफ टॉर्क इज जीरो देन dl by dt भी जीरो हो जाएगा, है ना, which basically implies कि L would be constant, और we can say कि initial angular momentum of system will be equal to final angular momentum, और we can say angular momentum is conserved। तो यही सब स्टेप्स लिखने के मार्क्स मिल जाते हैं तुमको। समझ में आया क्या? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, मतलब जैसे मैंने भी यहाँ गड़बड़ कर दिया था, बट ये R क्रॉस ऑफ, यू हैव टू प्रूव बेसिकली कि टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, लास्ट टू क्या है भाई? रोलिंग है ना? ये वाला तो थोड़ा फालतू ही है, मतलब बिकॉज इसका मोस्टली क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछते हैं वो लोग। ओके, बट कर लेते हैं। तो लेट्स से इफ ऑब्जेक्ट इज रोलिंग, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ओके, लिसन टू मी वन मोर थिंग। यहाँ पे एक और चीज समझो, ठीक है, यू शुड नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बिफोर वी स्टार्ट दिस। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? लेट्स से अगर इफ आई नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउट सम एक्सिस, लेट्स से ये एक्सिस पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो आई है, इट कैन बी एनी वैल्यू, 10 kg मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा वैल्यू, समझ लो, ठीक है। ओके, तो एक कोई एक्सिस पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नो होता वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ये पूरे ऑब्जेक्ट को यू नो इसको स्क्वीज करके एक पॉइंट बना दूं, इफ आई रिप्लेस द एंटायर ऑब्जेक्ट बाय अ पॉइंट मास, ओके, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो उसको पूरा ये ऑब्जेक्ट को मैंने स्क्वीज करके एक पॉइंट बना दिया और इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, तो वेयर शुड आई कीप दिस पॉइंट मास? कितने डिस्टेंस पे इसको रखे हम लोग, सो दैट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज सेम एज द प्रीवियस वैल्यू। ओके,
अगर यहाँ पे 10 वैल्यू मिला था तो अभी भी वैल्यू 10 ही मिलना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आएगा? इफ द एंटायर ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट मास, द डिस्टेंस एट विच दैट पॉइंट मास शुड बी केप्ट फ्रॉम द AOR so that moment of inertia is same, that distance is called as रेडियस ऑफ गायरेशन। तो वी कैन से, अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तो पॉइंट मास है, इसका फॉर्मूला क्या है mk स्क्वायर, ठीक है। और ये जो mk स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो पहले का वैल्यू था वही होना चाहिए, तो i, तो ये पॉपुलर फॉर्मूला है, i इज इक्वल टू mk स्क्वायर। तो इफ यू, ये फॉर्मूला कैसे काम आता है, कभी कभी वो k पूछ रहे हैं, मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली i पूछ रहे हैं, दे आर जस्ट प्लेस होल्डर्स ऑफ ईच अदर। i पूछा है, k दिया है तो इसका मतलब i दिया है, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया? तो i कैन बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। समझा? k का वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या है कि मास इज थोड़ा फार अवे फ्रॉम द एक्सिस, ओके। और k का वैल्यू लो है, मतलब मास थोड़ा नजदीक नजदीक में। जैसे अगर क्या बोलते हैं डिस्क वर्सेस रिंग, ओके, ठीक है, तो सेम एक्सिस के लिए, तो यू विल सी दैट कि जो रिंग है उसका k का वैल्यू हाई मिलेगा, ओके, और डिस्क है उसका k का वैल्यू कम मिलेगा। तो दिस k रिप्रेजेंट्स की हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझा? ये सब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं एक एक मार्क के लिए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ k। समझा? ठीक है, अभी अब आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, ठीक है। इन HSC वी ऑलवेज डील विद प्योर रोलिंग, HSC में प्योर रोलिंग ही है, ओके। तो प्योर रोलिंग में इशू यू मस्ट नो दैट कि वी कैन से कि V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये फॉर्मूला वैलिड होता है, फिर R इज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझा? ठीक है, तो ये अगर पता है तो फिर शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्या करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज हाउ मच, इट्स KE ट्रांसलेशनल प्लस KE रोटेशनल, इजंट इट? क्योंकि ये लीनियर मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है, तो लीनियर मोशन की वजह से इसके पास हाफ mv स्क्वायर का काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेशनल मोशन की वजह से हमने डिराइव किया अभी, इट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओके। नाउ डू द सब्स्टिट्यूशन, ओके, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, प्लस I को वी कैन राइट, अभी पढ़ा ना, mk स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, राइट। और ओमेगा को वी कैन राइट एज v बाय r बिकॉज प्योर रोलिंग, तो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऐसे मिलेगा कुछ। तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ओके, एंड दिस इज 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये एक्चुअली थोड़ा NCERT टाइप फॉर्मेट है, ओके, और बहुत लोग फॉलो करते हैं इसको, KE ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज नेक्स्ट डेरिवेशन में आएगा। कभी कभी सिर्फ इतना ही पूछते थे क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू कि देयर अ डिस्क व्हिच इज रोटेटिंग, तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, इतना ही पूछ सकते हैं, ओके। रोटेट कर रहा है तो सिर्फ हाफ I ओमेगा स्क्वायर आएगा, अगर रोल कर रहा है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो HSC विल प्रेफर कि इफ यू राइट दिस फॉर्मूला, हाफ ऐसे करोगे तो उससे अच्छा ये करो, मतलब जो जैसा उन्होंने दिया है वैसे ही कर लो। समझ में आया? What is K here? Radius of gyration. R is radius of the object. It can be a disc, sphere, anything. ठीक है? Fine. Last derivation. Last derivation actually entrance में भी काफी पूछते हैं। यहाँ पे क्या पूछा कि find velocity and acceleration, okay, of an object. ठीक है, of an object which rolls down an inclined plane. Rolls down एंड इंक्लाइन प्लेन, ऐसा कुछ तो दिया है। मतलब बेसिकली क्या है, लेट्स से एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया है अपने को, ये हाइट को h ले लो, ठीक है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ रेडियस r, इट कैन बी डिस्क, रिंग, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। यहां पे इट इज एट रेस्ट, इट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम हियर, तो रिलीज कर दिया यहाँ पे, और बोला कि ये जो सरफेस है इससे फ्रिक्शन इनफ है सो दैट इट कैन प्योर रोल, प्योर रोलिंग कर सकता है, वो स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोल करके नीचे तक आ रहा है। जैसे ही वो नीचे पहुंचेगा यहाँ पर, तो इट विल हैव सम वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन, ओके, एंड इट विल आल्सो हैव सम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा इज वैलिड एंड a इज इक्वल टू r अल्फा इज वैलिड हियर। तो अगर v पता है तो ओमेगा भी पता चल जाता है तुमको, और a पता है तो अल्फा मिल जाएगा। डेरिवेशन में मोस्टली v और a पूछते हैं बिकॉज दे नो दैट कि ओमेगा एंड अल्फा कैन बी फाउंड। समझ में आया क्या? ओके, कैसे करो देखो यहाँ पे, इसको वी डू यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। हम बोलते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन यूज दिस बाय, बिकॉज अगर तुम देखो तो यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहा है,
नॉर्मल रिएक्शन, फिर mg और फ्रिक्शन, इजंट इट? नॉर्मल का कोई वर्क होगा क्या पूरे पूरे पाथ पे? परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। फ्रिक्शन का वर्क होगा क्या? फ्रिक्शन का इन प्योर रोलिंग क्या होता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, राइट? बिकॉज फ्रिक्शन हैज टू परफॉर्म टू वर्क, उसको लीनियर वर्क भी करना पड़ रहा है और टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन भी करना पड़ रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क इज जीरो इन प्योर रोलिंग। रिमेंबर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ mg, समझा? तो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट वी कैन ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? चलो कर लेते हैं। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट? नथिंग, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी mgh, सही है ना? ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये रोल कर रहा है यहाँ पर, तो रोलिंग वाला यूज करेंगे, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम जीरो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो mm कैंसिल करो, ठीक है, और 2 वहां ले जाओ, ये टर्म नीचे आएगा एंड देन यू टेक द रूट, यू गेट v का वैल्यू एज क्या आएगा? रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो दिस, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते कभी, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भेज रहा हूं दिस। तो दिस इज योर वेलोसिटी, हाउ डू आई फाइंड एक्सेलरेशन? वील यूज काइनेमेटिक्स, ठीक है। वील से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और u जीरो है, देयरफॉर वी कैन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u, so v square is equal to 2as, या a will be simply v square upon 2s। अब देखो यहाँ पे क्या क्या समझना है। v square तो पता है, यहाँ से मिल जाएगा। s is the distance traveled, right? So you look at this triangle, ये h है, ये थीटा है, और ये डिस्टेंस को हम s बोल रहे हैं। तो कैन वी से दैट साइन थीटा इज h अपॉन s, लिख सकते हैं ना? ओके, तो एस का क्या मिल जाएगा? एच बाय साइन, तो वो डालते हैं यहाँ पे। हाँ देखो देखो यहाँ पे, तो ए वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? इसका स्क्वायर करके डालना है, ठीक है। इट इज 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एंड नीचे यहाँ पे और क्या क्या है हमारे पास? 2 है और s, s इज h अपॉन साइन थीटा विल गो अप, ठीक है। तो क्या कहेंगे? 2 2 बाय बाय हो गया, hh बाय बाय हो गया, ठीक है। तो फाइनली वी हैव a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। हो गया भाई, खत्म, ऑल डेरिवेशंस समाप्त। समझ में आएगा?